Welcome back, students, for our next video of chapter first of class 12 financial statements of not-for-profit making organization. In this video, we are going to cover this topic, cost of material consumed. This is our last topic for the fundamental class. After this video, we are going to solve some of the questions of this chapter for better understanding. Now here the content is cost of material consumed. Now, whatever the material NPOs are consuming throughout the year, that is their expense. So we have to show the material consumed in the income and expenditure account, expenditure side. Now the question here is, what is consumed? Normally, the consumable items are those items which are going to be consumed throughout the year. जो expenses, जो items, जो content या जो material आप consume करेंगे throughout the year, that is material consumed. Example, office में क्या consume होगा? Stationery. What will be consumed in the hospitals? That is medicines. What we are going to consume in the sports club, that is sports materials. So stationery, medicine, sports material, all these are consumable items for NPOs. Now, for the accounting treatment, we have to prepare a separate account for these consumable items. We have to show separately whatever the expenses related with these items. We have to prepare an account and we'll show separately. Now here, separate account we have to show, material consumed we have to show in the income and expenditure account. Which side? Expense side. हम सबको मालूम है कि अगर material consume होगा तो वो कहाँ show होगा? Expenses side में ही show होगा. Clear? अब जो हमारा stock है, जो आपका stationery है जैसे, तो एट द एंड कुछ स्टेशनरी बच जाएगा आपके पास. दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. वो कहां शो करोगे? हम सब जानते हैं स्टॉक कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट के एसेट्स में. और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? हमारे ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक कहां शो करोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में. क्लियर? तो बच्चों एक पॉइंट क्लियर है तुम्हारे माइंड में कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड होगा थ्रू आउट द ईयर वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में शो करेंगे. जो स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा. अब देखो, मटेरियल कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट फॉर्मूला ये इधर लिखा हुआ है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है? अब देखो, इस फॉर्मूले हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, आप फॉर्मूले पुट करना. क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, स्टेट में बेसिकली कुछ भी हो सकता है मटेरियल कंज्यूम, यहां पर हम स्टेशनरी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं. ठीक है? अगर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, अगर आपको पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्टेशनरी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो you have to put this formula in order to find stationery consumed during the year. कैसे करोगे? Opening stock of stationery, add payments made during the year, less closing stock of stationery, then we will get stationery consumed during the year. Students, if all these information is given in our question, then you have to put this first formula. The formula is opening stock of stationery, add payments made during the year, less closing stock of stationery, then you are going to get stationery consumed during the year. Got the point? Now, this stationery consumed during the year, where you have to write in the income and expenditure account, expenditure side. Got the point? Whatever the amount here we will get, this we are going to write here. Then opening stock of stationery, where we will write
in the opening balance sheet, which side? Asset side. Closing stock of stationery, where we will write balance sheet, asset side. And which balance sheet? Closing balance sheet. Got the point? देख लो बच्चों सब लोग, this is our first formula. Now student, this is our second formula. This is our second formula for calculating stationery or material consumed during the year. Now you have to see that what is given in our question. If all these information is there in the question, then you have to put in the same manner in order to calculate stationery consumed during the year. Now, what is the information that is required? Then only we are able to put this formula. First is amount paid for stationery. If in your question amount paid for the stationery consumed is given, whatever the stationery we have purchased, that amount what we have paid, if it is given in your question, then you have to write it first. Second, opening stock of stationery, that is stock of stationery at the beginning of the year, if it is given. Second. Third, opening advances for stationery. That means at the very beginning, if any advances paid for stationery is given in your question, you have to see very it's very peculiar while observing the items what is given in our question. Now, next is closing creditor of stationery. We all knows that creditors are those from whom we have purchased goods on credit. उधार पे खरीदा है हमने. Closing creditor. अगर closing creditor stationery का दिया हुआ है क्वेश्चन में तो नेक्स्ट, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया है वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, जैसे ही ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है वैसे ही क्लोजिंग एडवांस दिया हो. क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एडवांसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट से भी मिल सकते हैं हमें. क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हो वैसे ही ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अगर दिया होता है तो ये सभी इंफॉर्मेशन अगर आपको आपके क्वेश्चन में दी है, देन यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द स्टेशनरी कंज्यूम्ड. अब फॉर्मूला अकाउंट्स पे कुछ भी चीजें हम याद नहीं करते, हर एक चीज को समझते हैं. आप समझते हैं कि ये फॉर्मूला का कंपोजिशन क्यों बना. देखो जरा, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, आपने कितना अमाउंट स्टेशनरी के लिए पे किया. मैं कहता हूं मान लो हमने 50,000 स्टेशनरी के लिए पे किया थ्रू आउट द ईयर. नाउ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. मतलब इस पर्टिकुलर साल में आपने कितने अमाउंट का स्टेशनरी को यूज किया है वो फाइंड करने जा रहे हैं. ठीक है, चलो कितना अमाउंट पे किया हमने, सपोज 50,000 पे किया. ओपनिंग में आपके पास स्टॉक स्टेशनरी का कितना स्टॉक था, सॉरी, ओपनिंग का हमारे पास कितना स्टॉक है स्टेशनरी का, ये देखना है हमें. क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग का स्टॉक होगा वो इस ईयर आपने कंज्यूम कर लिया होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इसमें ऐड कर रहे हैं. गॉट द पॉइंट. सपोज ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 20,000 का. क्लियर. नाउ ओपनिंग एडवांसेस ऑफ स्टेशनरी, मेरे पास ओपनिंग में कितना एडवांस मैंने स्टेशनरी के लिए दिया हुआ है. अब जनरल सी बात है, ओपनिंग के फिगर्स कहां से मिलते हैं, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से. मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग है वही करंट ईयर का ओपनिंग है. तो ओपनिंग में कितना एडवांस मैंने पे किया वो मेरे करंट ईयर की स्टेशनरी के लिए होगा, इसीलिए ऐड कर रहे हैं. गॉट द पॉइंट.
मान लेते हैं 15,000। नाउ क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कौन से हैं? एट द लास्ट अगर मेरे पास क्रेडिटर पेंडिंग है, ठीक है, क्रेडिटर्स कौन से हैं? जिनसे हमने उधार खरीदा है, क्लोजिंग के क्रेडिटर पेंडिंग है। क्लोजिंग का अगर क्रेडिटर पेंडिंग है, इसका मतलब है आपने इस साल उससे गुड्स परचेज किए होंगे उधार में, और अगर इस साल परचेज किया होगा तो कंज्यूम भी तो किया होगा, इसीलिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करिए, 15, 20, 70, 80, 90, 95। गॉट द पॉइंट? 95,000। अब आगे देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। जो मेरे पास क्लोजिंग में स्टेशनरी का स्टॉक है वो इस साल तो मैंने कंज्यूम किया नहीं, अब तो ये कंज्यूम कब होगा? नेक्स्ट ईयर होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? लेस। समझिए चीजों को। मान लीजिए कि 10,000 है तो मैंने इसको लेस कर दिया। नाउ क्लोजिंग एडवांसेस फॉर स्टेशनरी। अब सोचिए अगर क्लोजिंग में आपने एडवांस दिया हुआ है स्टेशनरी के लिए, तो भैया ये एडवांस काहे के लिए दिया गया है? नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दिया गया, तो इस साल से तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए क्या कर रहे हो? लेस। मान लेते हैं ये 20,000 है। क्लियर? उसके बाद ओपनिंग के क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी। जो ओपनिंग का क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है ये प्रीवियस ईयर का है, ये मेरे करंट ईयर का नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्रेडिटर है उसका पेमेंट आपने कब किया होगा? इस ईयर में। लेकिन वो इस ईयर का मेरा कंज्यूमेबल तो नहीं है ना, इस ईयर का क्रेडिटर तो नहीं है, वो तो पिछले साल का था, इसीलिए आप क्या करोगे? लेस। मान लीजिए ये भी 10,000 कर दिया पूरा फॉर्मूला। अब इनको ऐड कर लीजिए 21314, तो 95 में 40,000 लेस करेंगे, 55,000 आएगा। ये 55,000 आप कहां पे शो करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में? एक्सपेंडिचर 55। ये पूरा ट्रीटमेंट इन फैक्ट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में शो कर देना है, डेबिट साइड। गॉट द पॉइंट? सबको क्लियर? ये पूरा ट्रीटमेंट एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आप ऐसे शो कर दीजिए और 55,000 आउटर कॉलम में दिखा दीजिए। क्लियर है? नाउ अब इनमें से बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो आपकी बैलेंस शीट में भी आएंगे। सॉरी, बैलेंस शीट में नॉर्मली क्या होगा? आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। ओपनिंग, क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाओगे? क्योंकि प्रीवियस ईयर की वो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, तो ओपनिंग में आपको शो करना होगा कि लायबिलिटीज कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटीज और एसेट्स को शो करना है। अब देखो सब बच्चे जानते हैं, ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहां दिखाओगे? एसेट्स में। कौन से? ओपनिंग वाले में। ओपनिंग एडवांसेस, ओपनिंग एडवांसेस, आपने एडवांसेस दिए हैं स्टेशनरी के लिए, दैट इज व्हाट? दैट इज प्रीपेड, पेड इन एडवांस। एसेट्स है आपके लिए, एसेट्स में दिखाना। कौन से में? ओपनिंग में, क्योंकि ओपनिंग ओपनिंग लिखा हुआ है। क्लियर? बहुत इजी है ये। क्रेडिटर, क्रेडिटर हम जानते हैं कहां आता है? सब जानते हैं, लायबिलिटी में। कौन सी बैलेंस शीट में दिखाना? क्लोजिंग में। देखो जैसा नाम लिखा हुआ वैसे ही शो करते जाना। अब फिर से स्टॉक कहां आएगा? एसेट्स में। कौन से में? क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एसेट्स में दिखाना, एसेट साइड। एडवांसेस फॉर स्टेशनरी, आप एडवांस पे कर रहे हैं स्टेशनरी के लिए, दैट इज प्रीपेड, पेड इन एडवांस, तो कहां दिखाना? एसेट्स में। कहां पर? क्लोजिंग में। क्रेडिटर हम जानते हैं लायबिलिटी है, कौन से में? ओपनिंग में, तो लायबिलिटी साइड में दिखा देना। तो बिल्कुल सिंपल सा था। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है आपको तो एक बार और वीडियो बैक करके अच्छी तरीके से समझ लेना। यहां पर अब हमारा पूरा फंडामेंटल का एमपीओ खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा। ठीक है? कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू क्लास।